براہ راست آپ کو دکھائیں گے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ یا قدرتی آفات سانحات ہوں، پاک فوج کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ بڑا اعلیٰ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ اور اپنے شہداء کے ساتھ جو ہے وہ دلی محبت اور پیار کرتی ہے، اور شہداء کی جو فیملیز ہیں انہیں ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتی ہے۔ میں نے بھی آج فیصل صاحب سے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی خدمت سروس اگر ہمارے حصے میں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے نہ صرف وہ ایک اعزاز ہوگا بلکہ ہمارے لیے وہ نجات کا جو ہے وہ باعث ہوگا، اگر آپ کی فیملی کے لیے جو ہے وہ ہم کسی قسم کی کوئی خدمت جو ہے وہ سر انجام جو ہے وہ دے سکیں یا آپ کے جو ہے وہ کام آ سکے۔ میں تمام شہداء جنہوں نے آج تک جو ہے وہ اس وطن کی حفاظت کے لیے یا قوم کی مشکل میں، وہ دہشت گردی ہو، وہ قومی آفات ہوں، سانحات ہوں، قدرتی آفات ہوں، اس میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی قوم کا، اپنے ملک کا جو ہے وہ نام اونچا کیا ہے، قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، میں سب کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ اور خاص طور پہ حالیہ جو سانحہ یہ ہیلی کاپٹر ہوا ہے لس بیلا میں، اس میں جو ہمارے افسروں نے، ہمارے جوانوں نے جو ہے وہ شہادت کا جام نوش کیا ہے، میں ان کے درجات کے لیے بھی اور انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ پوری قوم جو ہے انہیں سلام پیش کرتی ہے، اور پوری قوم دعا گو ہے کہ ہمارے یہ شہداء، ہمارے یہ غازی جو ہیں اسی طرح سے اس ملک اور قوم کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کرتے رہیں۔ سر، سوشل میڈیا پہ جو شہداء کے حوالے سے ایک منفی پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اداروں کے لیے ایسے ٹرینڈز چلانا اداروں کو متنازع بنانے کے برابر نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ ماسوائے اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے پوری 22 کروڑ قوم میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ آپ نہیں نکال سکتے جو پاک فوج سے پیار نہ کرتا، جو پاک فوج کے کردار جو ہے اس کو نہ سراہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ ٹرینڈ چلائے، یہ لوگ گمراہی کا شکار ہیں، اور میں یہ بات اس سے پہلے بھی متعدد بار یہ کرتا رہا ہوں کہ یہ شخص جو پی ٹی آئی کا سربراہ ہے یہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کی شناخت کی جائے، اس کا ادراک کیا جائے۔ اگر قوم نے اس کا ادراک نہ کیا اور اپنی سمت کو درست نہ کیا اور اسے موقع ملا مزید قوم کو تقسیم کرنے اور قوم کو گمراہ کرنے کا، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا، یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دو چار کر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان شہداء کی قربانیوں کا جو ہے یہ ایک آپ صلہ کہہ لیں کہ ایک ایسی صورت پیدا ہوئی ہے کہ جس میں نشاندہی ہو گئی ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو گمراہی کا شکار ہیں، اور یہ ہے وہ پارٹی اور شخص جو ان لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ باقی جو وہ ٹرینڈ چلایا گیا یا جس کی میں سمجھتا ہوں کہ اب تو اس کا کلا کما ہو چکا ہے، باقی ساری قوم اور ہر فرد جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے، تو یہ جو بھی جو ہے یہ چلا ہے، یہ قطعاً کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی ایسا نہیں ہے جس کے جو ہے وہ ایسے خیالات ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں ان کی گمراہی کی گہرائی دیکھیں
जो ये फॉरेन एजेंट के तौर पे इलेक्शन कमीशन के पे जो इनकी निशानदेही हुई है, उसके अलावा आप ये इनका अपना हाल देखें कि अफ़गानिस्तान जहाँ पे वो ड्रोन हमला हुआ है और अमन अल ज़हरी जो है वो हलाक हुआ है, अफ़गानिस्तान ने आज तक ये इल्ज़ाम नहीं लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि जी वहाँ से जो है वो ड्रोन चला है या चलाया गया है या कोई स्पेस जो है वो दी गई है। ये बदबख्त जो है ये इल्ज़ाम भी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है, पाकिस्तान में रहते हुए। तो ये गुमराही है। इस गुमराही के ऊपर जो है वो हमें पूरी कौम को, मैं समझता हूँ कि अब इसके बाद कोई शक शुबा नहीं रहा। ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद कोई शक नहीं रहा कि इमरान खान जो है ये फॉरेन एजेंट है और ये फॉरेन एजेंडे पे और फॉरेन जो है वो पैसे पे जो है इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी जो है फैलाने के एजेंडे पे गामजन है। और इस जो ये ट्रेंड इन्होंने जो है चलाया है, उससे भी जो है वो इनकी मुल्क दुश्मनी और जो है वो पाक फ़ौज के साथ, क्योंकि देखें किसी वक्त में इनको सपोर्ट मिलती रही है इन चीज़ों से, इन फैमिली से, लेकिन ये देखें कि ये गुमराही में इस हद तक जो है वो गुजर गए कि इन्होंने वो बातें की कि जिनको मैं समझता हूँ कि दोहराया नहीं जा सकता, जिनको जो है वो ज़ुबान पे नहीं लाया जा सकता, जिनकी सिर्फ मजम्मत ही जो वो की जा सकती है। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि आप सिर्फ फैसला अपना इस्लामाबाद के वकीलों के वज़ीर दाखिला है और फैसलाबाद में दाखिल नहीं हो सकते, आप फैसलाबाद में कैसे आ गए? मामला ये है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो एक बात वो मेरे हक़ में कर बैठे थे। उसके बाद उनकी जितनी छतरौल हुई है ना PTI में, उस छतरौल के जवाब में अब वो मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात रोज़ करके तो अपने आप को बैलेंस करते हैं। मामला ये है कि वफाक के पास एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका बजट जो है वो एक सूबा नहीं 2 सूबों को मिला लें तो उससे ज़्यादा है। और नादरा की, वापडा की, दूसरे इदारों की रीच जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ऐसा जो है वो जगह हो सकती जहाँ पे उनकी रीच नहीं है। देखें, ये वफाक और सूबाई हुकूमतें ये जो है ये एक निज़ाम का हिस्सा है, आइनी रोल है सबका, कानूनी रोल है। हमने सूबों के रोल को जो है वो बिल्कुल उसे जो है वो हम तस्लीम करते हैं। उन्हें भी चाहिए कि इस किस्म की गुफ्तगू करने की बजाय जो है वो ढंग का जो है वो काम करें। अब उन्होंने कहा है कि जी हम 13 को जो है वो जलसा करेंगे, उसके बाद 1 महीने का अल्टीमेटम देंगे। वो भाई किस बात का अल्टीमेटम दे रहे हो कि इलेक्शन कराओ? वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो जो है वो हटा लो। यानी तुम्हारी ये समझ नहीं आती कि तुम एक दिन एक बात करते हो, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन और बात शुरू कर देते हो। आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले इमरान खान ने पूरी कौम के सामने मीडिया पे आके कहा कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो अब किस बात का मुतालबा कर रहे हो कि जी 1 महीने बाद इलेक्शन करा दो, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं? वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाओ ना। और उसके ख़िलाफ़ जो तुमने एप्लीकेशन दी थी वो जो अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो आपने दरख्वास्त दी वो तो अगले दिन आपने वापस ले ली है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा लें तो उसके बाद फिर आए बात करें। फिर उसके बाद असम्बलियाँ दोनों तोड़ें, पंजाब असम्बली तोड़ें, KPK असम्बली तोड़ें, जो इस्तीफ़े दिए आपको एक्सेप्ट कराएँ, बाद फिर अल्टीमेटम दें। वरना इस तरह का अल्टीमेटम जो है ये आपकी 2 नंबरी है। ये 2 नंबर अल्टीमेटम जो है इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि ये आपके लिए बायसे शर्म होना चाहिए कि आप एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी करते हैं, तीसरे दिन तीसरी करती हैं। आपने अगर अल्टीमेटम कोई इस किस्म का देना है जिस किस्म का 25 मई को था, तो आप ज़हन नशीन रखें कि पुरअमन जलसा, पुरअमन एहतजाज जो है वो बिल्कुल आपको जो है वो इजाज़त है, मुल्क का आइन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है। अगर आपने वायलेंस की, अगर आपने कोई धौंस, कोई धांधली,
कोई धमकी, कोई ब्लैक मेलिंग का रास्ता अपनाया तो 25 मई से ज़्यादा जो है ना बुरा हशर जो है वो आपका होगा, और उस मकसद के लिए हमारी पूरी तैयारी है। राणा साहब, अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने आज कहा है कि 14 अगस्त से पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस हवाले से मुझे जानना आप क्या है? नहीं देखें, मैं वो शहजाद अकबर वाला काम तो मैं नहीं कर सकता कि मैं पहले ख़बरें दूं कि जी फ़लाँ को गिरफ़्तार किया जाएगा, फ़लाँ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। FIA इस वक्त 2 इंक्वायरीज़ कर रहा है। एक इंक्वायरी जो ये आपने अभी निशानदेही की है जिस बात की कि वो जो इन्होंने इस जो है वो लसबेला के खाने के बाद जो ट्रेंड चलाए इन्होंने और मुल्क दुश्मनी पे मबनी जो है वो बातें की हैं, एक उसके ऊपर जो है वो FIA इंक्वायरी कर रहा है। उस इंक्वायरी टीम में जो पहले FIA के ऑफिसर्स पे थी, उसमें हमने जो है वो जो हमारी एजेंसीज़ हैं सिविल और अस्करी, उनको भी जो है वो उसमें शामिल किया है और वो आज नोटिफाई किया है उनको। एक इंक्वायरी वो हो रही है और एक इंक्वायरी जो है वो ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रिपोर्ट है, फैसला है, उसके ऊपर जो है वो हो रही है। उन इंक्वायरीज़ के नतीजे में जिसके ख़िलाफ़ जो जुर्म साबित होगा उसका मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और जो उसमें मुलज़म करार दिया जाएगा उसको जो है वो गिरफ्तार भी किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जी। TLP की जानब से बयान आया है कि उन्होंने कहा कि राणा साहब ने परेड ग्राउंड में PTI को जलसे की इजाज़त दे दी है, हम 1 साल से इजाज़त मांग रहे हैं, अब वो फैज़ाबाद में धरना देने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 12 से आए हैं कि हमें इजाज़त नहीं दे दी। नहीं देखें, TLP के मतलब मुझे मालूम ये पड़ा है कि वो फैज़ाबाद चौक में जलसा जो है वो करना चाहते हैं। हमारी उनसे ये गुजारिश है कि वो जलसा जो है वो करें वहाँ पे लियाकत बाग में कर लें, या इस्लामाबाद में 2 जगह हैं, एक H9 वो जगह जो है ग्राउंड जो है और दूसरा परेड ग्राउंड। ये दोनों जगह ऐसी हैं कि यहाँ पे जलसा करने या एहतजाज करने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा इजाज़त दी है या उन चीज़ों को उनको मुख्तस किया है। तो वहाँ पे अगर ये दोनों जमातें जलसा करना चाहती हैं जलसा करें, एहतजाज करना चाहती हैं एहतजाज करें, लेकिन वो जो पैरामीटर्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको साइन करना पड़ेगा, उनको ओबे करना पड़ेगा और उसके मुताबिक जो है कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जो है वो एक जमहूरी तौर पे जो एक जमहूरी मुआशरे की, जमहूरी मुल्क की पहचान है, उसके मुताबिक जो है वो TLP भी जलसा करे, PTI भी करे और भी को करना चाहता है। लेकिन चौकों में रोड्स को बंद करना और लोगों को इनकन्वीनियंस देना, ये सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है, हाई कोर्ट का भी हुक्म है और गवर्नमेंट का भी रिजॉल्व है कि ऐसी किसी एक्टिविटी की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। थैंक यू जी। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान नाहल होने जा रहे हैं। देखें जी, तोशाखाना रेफरेंस में आप मुझे बताएं कि ना इसने टी शर्ट छोड़ा है, ना इसने वहाँ पे कोई सोने का कलम था वो छोड़ा है, ना इसने वहाँ पे कोई और कोई चीज़ थी वो छोड़ी है। फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने जो है वो 2+2 4 है, 2+2 4 है कि इन्होंने वहाँ से घड़ियाँ उठाई, उनको जो है वो फ़रोख्त किया दुकान पे, वहाँ से पैसे लेके 20% जो है वो जमा करवा दिए, 80% जो है वो अपनी जेब में डाल दिए। एक गैर कानूनी काम, एक गैर अखलाकी काम जो है वो किया गया और उसके बाद उन असासों को अपने जो है वो एसेट्स में अपनी डिक्लेरेशन में शो नहीं किया। आप मुझे बताएं कि अगर एक आदमी को सिर्फ इस बात पे नाअहल कर दिया जाए कि जी वो बेटे की फैक्ट्री में मुलाजमत का अकामा था और वो भी शायद इसलिए था कि लोग आने जाने के लिए वो वीज़े की प्रॉब्लम से बचने के लिए कर लेते हैं, तो उसमें मुलाजम था, तनख्वाह ले सकता था, ली नहीं है, लेकिन क्योंकि तनख्वाह जो है वो वाजिबुल अदासी एसेट था, डिक्लेयर नहीं किया, लिहाजा सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल। तो आप मुझे बताएं कि ये जो तोशाखाना में जो इसने वहाँ पे गैर अखलाकी हरकत की, जो मुल्क की बदनामी, आप देखें ना वो घड़ी जो एक मुल्क के बादशाह ने जो है वो इसे दी, वो जब दुबई की दुकान के लिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।